मदीना। اس میں حاجی امین سفینے جو میں تھے لکھا گیا تھا یا مکہ شریف پہنچ کے لکھا گیا تھا؟ یہ سفینے میں لکھا تھا. ہاں چونکہ آپ وہیں تھے اور اس جمتا میں جو جا رہا ہے تھا نا. یہ کتاب جو ہے نا وہ چھپ کے آئی تھی. خوشاد جومتا جا رہا ہے سفینہ، تو یہ اس وقت سفینہ تو سفینے میں لکھا تھا. حاجی امین ناتخواں اور ایک اور دیوانہ تھا، نام یاد نہیں ہے مجھے، تو یہ دونوں اپنے طور پر سفینے میں آ گئے تھے. اور حاجی امین تو میرے گلے پڑ گئے کہ میں اب آپ کے ساتھ رہوں گا. بھائی یہ تو ہے کیسے ہے؟ تو خیر وہ کسی طرح بھی وہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، کسی طرح بھی انہوں نے وہاں کہلوا لیا. پھر ہمارے ساتھ سفر میں رہے تھے، بالکل سگوڑی ہے، خود بخود آ کے ہمیں چل مدینہ. تو یہ بھی ایک یادگار ان کا بھی واقعہ تھا. اور ایک وہ دیوانے کا نام یاد ہوا آپ کو؟ عرفان. اللہ یہ ایسا دیوانہ تھا، ایسا 100 دیوانہ تھا، چل مدینہ کا مطالبہ بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا ابھی آ گیا تو اس کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو بغیر مطالبے کے ہم نے ساتھ رکھ لیا تھا. وہ تھا ہی ایسا دیوانہ، وہ کچھ سوچ کا نہیں پڑتا تھا. یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا اے سی جو ہوتا ہے نا یہ کیا ہے، پتا نہیں تھا. یہ آپ نے پوچھا تھا ان کو یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ رہی تو ہے. یہ پنکھے کی طرف اشارہ کیا تھا. ماشاءاللہ بہت شریف تھا، اللہ اس کے صدقے ہم کو بخشے. پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، اب تو دیکھا ہی نہیں ہے، زمانہ ہو گیا اس کو. جدھر بھی جدھر بھی امتیاز بھائی بھی میسج آیا کہ میں بھی اس میں آپ کے ساتھ تھا، اور ان کا کہنا ہے امین بھائی جو ہے نا وہ مسلط چل مدینہ ہوئے تھے. کون؟ حاجی امین نا. ہاں یہ تو مسلط ہوئے تھے، مگر ہے آئٹم کسی ہے وہ ایسے اسٹائل کیا تھا کہ لینا پڑے اپنے کو. اس وقت ان کی بھی جوانی تھی نا. بابا عرفان کو میں نے بولا تھا، عرفان بھائی جو تھے نا ان کو میں نے بولا روتے ہوئے، یار عرفان دعا کرو نا میں بھی چل مدینہ ہو جاؤں. بولا ابھی دیوانے تم مدینے آ گئے نا، بس ابھی صحیح ہے ابھی دیوانے. عرفان نے بولا تھا آپ کو؟ عرفان نے مجھے بولا تھا. اچھا کہ میں چل مدینہ ہو جاؤں. میں نے بولا تھا میں چل مدینہ ہو جاؤں، دعا کر دو نا یار. آپ نے تو روتے ہوئے بولا، روتے ہوئے. تو انہوں نے بولا اب دیوانے مدینے آ گئے ہو نا، بس ابھی صحیح ہے نا یار. اس نے یہ کہا تھا. اچھا سفینے میں مدینہ آ گیا تھا بیچارہ، واقعی بہت دیوانہ تھا. جہاں جاتا مٹی کے برتن ساتھ لے جاتا تھا. کہیں پر دعوت بھی ہو نا، مٹی کی سنت سمجھ میں آ گئی تھی تو وہ کسی سے شرماتا نہیں تھا. مٹی کے برتن نکال کر شادی کی دعوت میں بھی کھاوے. یہ کیا بہت سیدھا تھا، یعنی بہت زیادہ سیدھا تھا. کسی نے شاید پیسے ویسے دے دیے تھے، اس کو چڑھا دیا تھا سفینے میں. وزیر باپو بھی تھے غالباً اس میں؟ نہیں اس میں نہیں، یہ نہیں تھے. نہیں تھے. اچھا مدینہ بھائی تھے ہمارے ساتھ، مدینہ قادری. ہاں مدینہ بھائی. اچھا ماشاءاللہ. بہرحال وہ بڑا پرکیف سفر تھا. اور جو اس وقت جب یہ اعلان ہوا تھا کہ اب احرام باندھ لو، اور جو مطلب مناظر تھے نا، احرام باندھ کر جو حجاج اپنے اپنے اس سے نکل کر باہر آ گئے تھے کمروں سے، اس سے اس سے، اور جو لبیک کی صدائیں اٹھ رہی تھی. اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا، نہ یہ ٹیلی فون میں کوئی سی سروس تھی. واقعی وہ منظر دیکھنے والا تھا، منظر دیکھنے والا تھا. آپ تھے آج عبدالحبیب کیا؟ جی ہم آپ کے پاس چھوڑنے آئے تھے، ہم تو رو رہے تھے، آپ جا رہے تھے ہمیں چھوڑ کے. نہیں اندر کی بات کرو، جو لبیک کا ٹائم آیا نا، جب جدہ شریف اندر کی خبر آ گئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے جہاز کے جو کریو، جو عملہ تھا، سی مین، اس کی طرف سے یعنی ان کے بیٹے کی ایک کال آئی ہے، وہ میں نے بھیج دی ہے مدری چینل میں، تھوڑی دیر میں چلاتے ہیں. یعنی وہ بات آ گئی ہے کہ اندر کا منظر کیا ہوتا تھا جہاز کے عملے کی طرف سے، سمجھ لے اطلاع آئی ہے. اللہ اللہ. ایک سی مین بڑی محبت کرنے لگے تھے اور خدمت کرتے تھے ہماری. پھر انہوں نے ایک بار مجھے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری مخالفتیں کی ہے، مجھے پتا نہیں تھا تم لوگ ایسے ہو. الحمدللہ مطلب اندر سیمین تھے وہ. غلط فہمی ان کی دور ہو گئی، خالی دیکھ کر ہی دور ہو گئی. اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا، میں آپ اوپر کے حصے میں تھے، ہم لوگ نیچے والے کے اس میں تھے. تو اوپر سے میں آپ کے ساتھ ایک دن تھا، میں جب نیچے آنے لگا تو سیڑھی سے وہ جب جہاز پانی کا یوں اور یوں ہوا تو میری ایک بیساکھی نکلی. تو میں نے دوسری طرف سے وہ پائپ کو پکڑا، وہ پائپ میں شبنم تھی، تو وہ میں گھوما اور نیچے جا کے گرا نا،
तो नीचे 2 जने सोए हुए थे, वो तो उठ के भागे, ये आया क्या हमारे जहाज में, और वो जो भागे हैं। अच्छा, इसके बाद मेरी तो निक्सोर जो थी नाक से, वो नक्सीर इतना खून बहने लगे कि मैं जब भागकर ऊपर यानी बैसाखी के बगैर लोट पोट करके ऊपर पहुंचा तो आपने देखा, आपने कहा या गौस पाक ये क्या हो गया। मैंने कहा मैं गिर गया। तो आपने कहा चलो मेरे बाथरूम में आओ और पानी का नलका है ना इसके नीचे सर रख दो। मैंने कहा नहीं, मैं आपके बाथरूम में जाऊंगा ही नहीं, आपका बाथरूम नापाक हो जाएगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। आपने कहा सब माफ है, आप चले ही जाओ, अब चले ही जाओ। फिर मैं दूसरे के उसमें गया। फिर वो जो तौलिया था ना जिससे मैंने अपना खून पहुंचा था, तो आपने जहाज के अमले के मेन आदमी को बुलाया और आपने फरमाया कि ये तौलिया जो है ये आप पहुंचने के लिए देते हैं, हमारे भाई गिर गए थे तो इन्होंने खून साफ कर लिया, तो इसके एक्स्ट्रा जो भी पैसे हैं वो आप हमसे अलग ले लेंगे। इस बात से वो इतना मुतासिर हुआ कि कई अमले के लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज से मुरीद भी हो गए थे। आपको बहुत याद है यार, मैं तो याद है पापा, मुझे कई बातें, इस सफर की कई बातें याद है, और वो बातें भी हैं जो आपने कहा ना सब बातें बताने की। जाहिर अंडरस्टूड है। सर अच्छा, वो जो 2 आदमी थे जो भागे थे, बाद में उनसे कोई मुलाकात वगैरह आपकी हुई नहीं हुई? क्या हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं, आपकी उनको तो नक्सीर फटी थी, आपकी नक्सीर फटी थी, उन बेचारों का क्या हुआ था? समुद्र में कूद हाँ, नहीं, वो तो बेचारे वो मुझे जब देखा तो वो फिर वो भी मेरी हमदर्दी में बेचारे लग गए मेरे पीछे, मगर इनको हुआ ये आसमान से टपका कि कहाँ से ये टपका, ये तो बिल्कुल मतलब सोचका नहीं पड़ रहा था उसे। और बेचारे जरा सो रहे होंगे ना, तो जमीन पे लोटपोट थी उन्होंने। मैं कहता हूं अगर ये मंजर रिकॉर्ड हो जाता ना जो अमीर अहले सुन्नत का जहाज की तरफ जाने का था, तो आज भी मेरा ख्याल है लाखों करोड़ों लोग आंसू बहाते हैं कि ये मदीने जाने का कैसा अंदाज है। अच्छा, उस वक्त जब मैं बिल्कुल नाक से खून बह रहा था, उस वक्त मैंने ना वो बाद में आपने फरमाया कि यार अमीन उस वक्त आपकी हालत ऐसी थी कि मैं बिल्कुल अपसेट हो गया था। आप उस वक्त अगर मुझे बोलते ना चल मदीना कर दो तो मैं आपकी नस्लों को भी चल कर देता। तो मैंने कहा बापा अभी मुझे चल कर देना। बोला अभी वक्त निकल गया। फिर भी आप हो तो गए ना। हाजी अमीन, हाजी मुसल्लत हुए थे। वाकया याद आ गया। मेरे सुन्नत मुझे इस पे वाकया याद है कि चल मदीना जो नहीं उस वक्त कितना ही नहीं एक तरह के मरहला होता था, इसके लिए मराहिल तय करने पड़ते थे। जी जी जी। एक जो है ना वो गोश्त फरोश था कि जिसको हमने जो वो कोई 93 के बाद बेल ज़बा करने के लिए उसको बुलाया गया था। हुआ ये कि उस बेचारे के आने से पहले यानी वो बेचारा आया टाइम पे, और उससे पहले जो है ना वो बेल गिर चुका था और छुरी फिर गई थी। अब मेरे सुन्नत तो उससे जो ना वो माजरत वगैरह चाहे कि माजरत आपको टाइम दिया तो इससे पहले जो है वो हो गया काम। तो फिर कुछ देर बाद मेरे सुन्नत ने फरमाया कि अगर ये कह देता ना मुझे कि ठीक है मुझे चल मदीना कर दें तो उसको करना पड़ता। अच्छा, वो जो आइए वो कॉल सुनते हैं। सीमेन के जो बेटे थे ना, आप क्या कह रहे थे अब्दुल हबीब पे, कौन है? जी सीमेन के बेटे जो हैं हमारे रिजवान भाई हैं, मुबल्लिग दावत इस्लामी भी हैं, और उनके वालिद साहब ने उनको क्या बताया था, उनका तो इंतकाल हो गया है। आइए सुनते हैं। अब्दुल हबीब भाई, ये जो सफ़ीने जो जिक्र थी रही है ना, ये मुझे वाली साहब सीमेन हुआ सफ़ीना अरब भी और सफ़ीना हुजाज शायद नाम वो मुझे याद है। वाली जब इंतकाल थी हुई वाली साहब बताना हुआ कि बापा आ गया हुआ, मतलब बाप मुझे वाली साहब उन जहाज़ में ही हुआ, क्रू हुआ सीमेन हुआ। तो बाप मुझे वाली साहब ये बयान करे था कि यार वाली साहब ने बयान किया ये मतलब मुझे कैप्टन हिली भी हो कि यार जिंदगी भर 5 सफ़र करे आयो, हाजे के गिनी भी आयो, एरो शख्स आऊं नए रहियो कि बंदो केर है जो सवाज अची ने ठक ठक करी ने मतलब नमाज में लोगों के उतारे। तो वाली साहब बता कि ये हाजी हजरत साहब हुआ कि लोगों के फजर जी नमाज में उतारना हुआ, वो कैप्टन हिली भी हो कि जिंदगी थी भी आज तक पाके कोई एरो कोई हाजी ना आवे जो पाके जहाज में उतारनो हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी कोई वाक्य आ जाए बता ही दिया कि हाजी अमीन एड़ो थीनो। हाजी अमीन, ये इन्होंने जो फरमाया, इन्होंने जो भी बयान दिया मेमनी में, इसको जरा उर्दू में बोल दें आप। अमीर अहले सुन्नत ने हम सबको बिठा के सदा मदीना की तरकीब तो दी थी, और सफ़ीने अरब में जो इमाम मदीना जो थे वो आपने मदीना भाई को बनाया था कि आप इमामत यहाँ की जो है ना जो मस्जिद थी
वहाँ पर मदीना भाई इमामत करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की दावत सब देते थे और इसके अलावा दर्स वगैरह का भी सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन नमाजों में जारी था। हज का तरीका बताते थे। जी, हज का तरीका तो काफ़ी दिनों ये सिलसिला बहुत अच्छा रहा और हज का तरीका ये सिलसिला रहा, महफिल नात वगैरह होती, ये सिलसिला तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी अब्दुल लतीफ, सफीने में बस वो सफीना धूम पड़ी हुई थी। धूम भरी हुई थी। 2 मस्जिदें थी सफीने में। 2 मस्जिद। एक मस्जिद पर हम लोग थे, हाँ, हिसाब जी, जी। किताब हमारा था, हम ही लोग नमाजें पढ़ाते थे। इतना बड़ा तो सफीना था। सफर भी 7 या 8 दिन का था ना? शायद सफीने हुज्जाज, ये 2 सफीने थे, सफीने अरब और सफीने हुज्जाज। 7 दिन का सफ़र था ये और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन तो मैं मतलब चूँकि वो कौन सा मैं चल मदीना, वो मिल मदीना और सगवारी मदीना, चल मदीना, तो आप लोगों ने तो रोज़ा रखा था, मगर वो कैप्टन जब मिठाई लेकर आया ना, वो जब सफ़ीना रवाना हुआ और मिठाई का डब्बा लेकर आया इतना बड़ा, तो आपने उससे फरमाया कि हमारे इन भाई को खिलाएं, इनका रोज़ा नहीं है। तो मैंने कहा बस मैं भी अभी रोज़े से सही हो जाता हूँ, अब मुझे मिठाई वगैरह नहीं खानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी लोग नाश्ता करते हैं ना, तो हम लोग सहरी करते हैं और लोग जब रात का खाना खाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मगरिब में इफ्तारी का वो होता हिसाब किताब, रोज़ तकरीबन रोज़ 7 दिन आने में 7 दिन जाने में, दोनों में इफ्तारी सहरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मेरी जो जगह थी बाबा देख की थी, मेरी जो है ना वो नीचे का जो बिल्कुल देख उसकी जगह थी, मगर आपने करम फरमा लिया क्योंकि मुझे याद है कि वो असलम भाई को आपने नीचे भेजा था तो कि ज़रा देख कर बेटा आना, तो वो चक्कर लगा के आए नीचे से, तो बताया नीचे तो लोग उल्टियाँ कर रहे हैं और खाना खाते हैं, और क्योंकि देग में जो आखिरी वाले में होता है ना उसमें हिलजुल जो है ना ज़्यादा महसूस होती है, और वो कमज़ोर वाला जो होता है जिसको उल्टी वगैरह का वो होता है उसकी काफ़ी उल्टियाँ वगैरह, तो बोला नीचे की तो हालत गैर है, तो आपने मुझ पर करम किया था और इस्लाम भाइयों के साथ ले लिया। स्टीमर में देग होती है, देग वो जो जिसमें खाना पकाते हैं, नहीं देग या देग या हाजी इमरान निचला है। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बता दें। देग चीरिया होगा, देग चीरिया होगा। नहीं देग वो देग है, और ये हाजी इमरान है ना, ये आजकल मेरी बुजुर्गी की तरफ ज्यादा मुतवज्जो हो है बुजुर्ग, अब ये तो बस बाने खुद। इन्होंने बोल के तो आजकल ऐसा कर दिया कि आज तो नमाज में भी लग रहा था मुझे कि मैं सचमुच हाजी इमरान ने मुझे बुजुर्ग कर दिया। यूं है नहीं तो इतनी उम्र तो नहीं आपकी, 50 बुरा कर दिया, बुरा 50 से ऊपर हो गया ना। 50 से तो ऊपर 50 समझते हैं। बाबा अभी देखा ही किया बाबा। नहीं 50 से ऊपर कितनी उम्र है? 50 से ऊपर 2 4 5 और मिला लो, और क्या। चले अल्लाह खैर खैर फरमाए। करे, अल्लाह खैर करे। नहीं माशाल्लाह बड़ी यादगारें हैं उस सफीने में, और अभी भी तो बहुत सारी बातें हैं, बाद में भी हो सकता है याद आए इंशाअल्लाह। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, ये जो सीमेंट का जो स्टेटमेंट था, अगर इसको थोड़ा सा आप वजाहत कर दें, चूंकि असल में वो मेमनी में था तो शायद कईयों को समझ में ना आया हो। जी वो भाई उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरे वालिद साहब ने बताया, पहले तो ये क्लियर कर दूं जो मुझे मैसेज इम्तियाज भाई का भी आया कि सफीना शम्स था। सही है, हाजी इम्तियाज भी थे। वालिद साहब इनके सीमैन थे और वो कहते थे जी कि ये जो है ना अमीर अहले सुन्नत जो है ये फजर के लिए लोगों को उठाते थे, और कैप्टन भी हैरान था कि हमने इतनी बार हम हाजियों को लेकर गए, पहली बार ऐसा शख्स देखा है जो लोगों को फजर के लिए भी उठाते हैं, यानी सदाए मदीना लगाते थे। तो अमीर अहले सुन्नत का ये अंदाज सीखने को मिल रहा है कि 7 दिन सफर में रोजे भी हुए, बाजमात नमाजें भी हुई, दरसो बयान भी रहा, हज का तरीका भी सिखाया गया, और ये नात ख्वानी वगैरह का सिलसिला सफर में भी ये सारे काम जारी रहे। अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे, और हमें भी सफर हज हो या कोई भी सफर हो उसमें नेकियां करने की तौफीक अता और फरमाए। अब्दुल हबीब भाई हमारी बैठ के बापा ने वहाँ पर, मुझे ये तक याद है, बैठ के हमारी तरबियत फरमाई थी कि देखें हम सफ़ीने में हम हज के लिए जा रहे हैं, मगर हमारा जो मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह करनी है, इंशाअल्लाह इसको भी हम पूरे सफ़र में पेश नज़र रखते हुए नेकी की दावत देते रहेंगे। नहीं उस वक्त क्या है, अपने मदनी मकसद का ऐलान हो गया था, ये
इस तरह के नहीं, नहीं, हमारा मतलब मदनी आज मकसद का क्या बता है, रहा हूं कि मुझे जो अपनी हमारा और सारी मकसद है। दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। ये आज का मकसद जो उसको मैंने वो किया। अच्छा अच्छा, अब यूं नहीं करें यार। तो ये अल्फाज तो नहीं थे उस वक्त? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला